Now pick up a yellow page. You will all remember that there used to be a directory system. BSNL used to have its own directory. There are so many other directories, yellow pages also. And from yellow pages to yellow journalism is what we have seen in this entire story. Some list is crafted, created, circulated, and the story goes around a fake list. 10 countries have been named, that 10 countries this spyware is used. Now, I do not know which spyware is used, but if those spyware is used by 10 countries, have the other countries' opposition behaved and reacted the way our opposition has? This is not a story, this is a non-starter across the globe, because based on concocted, fabricated, evidence-less story, nobody does story, because that story itself calls for forgery and defamation. Leaked data is an offense, and that leads to further complications for people who base their stories on leaked data. It only happens in India. I am really shocked and surprised the way mythical characters like Darth Vader or Voldemort are created in Harry Potter. Similar conduct is being indulged in by the opposition in the parliament. Whenever something right and good is supposed to happen to the country through welfare schemes, new laws, this kind of conduct is indulged in. And yes, you must understand the chronology. The chronology is, there is something like Data Protection Act, a joint parliamentary committee, which I was chairing and was assigned, a task assigned to me by the Honorable Speaker. All the members of opposition worked on it in a most transparent manner. The report was ready, but the whole country was moving from one crisis to the other, especially in view of Corona, then elections, then parliamentary session, then reshuffle. All those things led to that report is not brought before the parliament for adoption, but that report is submitted to the speaker. And data protection is going to become the law of the land. And this is directly connected with that. This is to undermine the Indian institutions, that these kind of stories are floated. This is to desensitize public on the credibility of the structures when rights of Indians and democratic structure is involved, and to malign the image of country that these acts are depended upon by the opposition. And that's why I say that these people are people who will do anything to fake the story, fake the narrative. NSO, the company which builds the spyware, has denied that this is not a list of their customer and has no corroborative evidence of any connection between the list which is in circulation or their customers. Amnesty International has denied about this list, and yet opposition has continued to disrupt the House on a fake list. And if you recall, on WhatsApp also, they had brought this story earlier about a spyware. The matter went to Supreme Court and matter was decided against that fake narrative. Repeatedly, these kinds of narratives are built only to damage the reputation of India, so that the new ecosystem which government is trying to create to secure the data of Indians, to secure and build an ecosystem which is protective of Indian data and Indian the rights of Indian people. To damage all that, these kind of things are created, in addition to the fact that Parliament is in session, several new laws are likely to be brought in. Any decent debate on corona crisis management will show the previous governments in very poor light and existing opposition state governments in very poor light. To avert all the arguments in favor of the government, this particular story, the fake story, is being depended upon. We also know
that this was leaked by Forbidden Stories. I don't have a problem with Forbidden Stories, but I do have a problem when Forbidden Stories does not mention the word fictional stories. The fiction is apparent by the 3 acts which they have engaged in, and there are all kinds of things which happen when it comes to spying and data protection. So far as India is concerned, we are dealing with Maoists, we are dealing with terrorists, we are dealing with people who are financial offenders, we are dealing with all kinds of criminals. And there is an established mechanism in which these acts or these protocols will be engaged in. There is Section 5(2) of the Indian Telegraph Act 1885, and there is Section 69 of the IT Act 2000. When there are issues concerning national security, public safety and public order, this protocol is followed, and this protocol is based on checks and balances. And based on these checks and balances, certain authorizations are granted for any kind of tapping or monitoring. So interception, monitoring and decryption is based on Information Technology Act and its rules. It's based on earlier format of Telegraph Act. 3 things. One is the published story is based on a list of the numbers which are available in any directory. It's a home location register. The second part is the amnesty has denied this list. Third aspect is the company whose product of Pegasus is supposed to be used by some people has alleged that these claims are uncorroborated and do not tally with their customer base. And the time-tested processes in our country are absolutely stable and clear as to whenever this act of encryption, interception or decryption or monitoring is conducted, it is conducted under the rules and regulations of the land. So opposition can go on creating mythical conduct and go on working like a mythical figure themselves. And I have nothing more to say except may God bless them with some wisdom. मित्रों, आज हम पेगासस से रिलेटेड जो कहानी येलो पेजेस के माध्यम से देखी जा रही है वो आप सबके सामने है। जैसे पुराने समय में येलो पेजेस होता था, डायरेक्टरी होती थी, वहां से कुछ लोगों के नाम नंबर उठाकर, जिससे उनका घर पता ये सब आपको पता लगे, उनके नाम नंबर उठाकर एक लिस्ट बनाई जाए और उस लिस्ट को सर्कुलेट करके पार्लियामेंट को डिसरप्ट किया जाए, पार्लियामेंट में हुड़दंग मचाया जाए। और आज जो टीएमसी के मेंबर्स ने पार्लियामेंट में, राज्यसभा में किया, वो बहुत ही शर्मनाक है। और ठीक उसी प्रकार जिस तरीके से कुछ मिथिकल कैरेक्टर हैं हैरी पॉटर में, वोल्डेमॉर्ट, डार्थ वेडर, उसी तरीके की हरकतें इन लोगों ने आज पार्लियामेंट के अंदर की हैं। कांग्रेस और टीएमसी लगातार इस तरीके के झूठे नैरेटिव बनाने में कामयाब हो रही है, क्योंकि कुछ येलो पेज से येलो जर्नलिज्म करने वाले लोग उनका साथ दे रहे हैं। आपको समझना होगा कि एमनेस्टी ने इस लिस्ट को इनकार किया है कि इस लिस्ट से उनका कुछ लेना देना नहीं है और ये लिस्ट कोई असली लिस्ट नहीं है, और उन्होंने बिल्कुल इससे अपना पल्ला झाड़ लिया है। बार बार शब्द इस्तेमाल अलेज्ड है, यानी ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, अपना पीछा छुड़ाने के लिए, क्योंकि ये फोर्जरी और डेफेमेशन का केस सीधे तौर पर बनता है। दूसरी बात, एनएसओ जो कंपनी है इजरायली जिसका ये प्रोडक्ट है पेगासस, उसका साफ शब्दों में एक डिनायल आया है कि ये हमारे कस्टमर से बिल्कुल कनेक्टेड लिस्ट नहीं है और इसका कुछ लेना देना नहीं है। तीसरी बात है कि भारत के अंदर अगर कहीं भी टैपिंग होती है या जब निगरानी की जाती है तो वो अपराधियों के ऊपर, जैसे माओइस्ट हैं, टेररिस्ट हैं, जो कि पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक ऑर्डर
और नेशनल सिक्योरिटी की हरकतें जहां होती हैं उसकी एक बिल्कुल ऑथोराइज प्रोटोकॉल है, उसमें बल्कि बहुत सीनियर लोगों के उसमें हस्ताक्षर होते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी से लेके तमाम लोग उसमें जुड़े हुए होते हैं और उसी के आधार पर इस तरीके का काम कुछ सर्कमस्टांसेस के अंदर कुछ समय पर किया जा सकता है। भारत को लगातार बदनाम करने की ये कोशिश है और इस प्रयास के कुछ कारण आप सबके सामने होने चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूं कि बहुत गलत तरीके से भारत में स्थित जो भारतीयों का डाटा है उसका गैर जिम्मेदार और गैर कानूनी इस्तेमाल हो रहा है और इसी कारण से भारत सरकार ने एक जेपीसी का गठन किया था जिसको डाटा प्रोटेक्शन की जेपीसी कहा जाता है, पीडीपी पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर, और उसकी रिपोर्ट तैयार हो चुकी थी। उस रिपोर्ट पे हस्ताक्षर भी हो चुके थे, लेकिन वो रिपोर्ट पब्लिक में आ नहीं पाई क्योंकि लगातार कोरोना महामारी का जंजाल सबके जीवन में रहा और साथ ही देश में इलेक्शन होते रहे, फिर कैबिनेट रिशफल हुआ और उन सब के चलते उसकी जो एडॉप्शन है वो डिले हुई। लेकिन वो रिपोर्ट तैयार है और अभी स्पीकर साहब ने किसी को अपॉइंट करना है उसको एडॉप्ट कराने के लिए भी। तो भारत सरकार बहुत सीरियस है अपने लोगों के डाटा को लेकर और डाटा प्रोटेक्शन को लेकर, लेकिन वो समय अनुसार काम किसी वजह से डिले रहा। दूसरा पक्ष है कि अभी संसद का सत्र चल रहा है जिसमें लोगों के हित में लाने वाली बहुत सारी चीजें, कानून, नियम भारत सरकार लाना चाहती थी और उसको किसी तरीके से उसमें व्यवधान डाला जाए, इसी के चलते इस तरीके की हरकत पार्लियामेंट को नहीं चलने देने का काम किया जा रहा है। तीसरी चीज है कि पार्लियामेंट के चलते, चाहे कोविड की सिचुएशन थी चाहे अन्य विषय थे, जिसपे लगातार एक भयंकर नैरेटिव बनाने का प्रयास किया गया, जहां पर राज्य सरकारों की अपनी जिम्मेवारी और मुंह मोड़ने वाली हरकतें सब जनता के सामने ना आए और उन विषयों पे बहस ना हो पाए, इस कारण से भी एक गुमराह करने का, जनता को गुमराह करने का ये प्रयास है। लगातार भारत के लोकतंत्र के जितने इंस्टीट्यूशंस हैं उन पर अटैक किया जा रहा है और भारत को इंस्टीट्यूशनली कमजोर करने का प्रयास है। येलो पेजेस या जिसमें घर की लोकेशन पता चले, उस तरीके की सर्विसेज का एक डाटा लीक कर दिया जाए और उसके आधार पर पार्लियामेंट को नहीं चलने दिया जाए, कहां का न्याय है। जैसे मिथिकल कैरेक्टर है झूठ मूठ के मन घड़ंत, उसी तरीके से वोल्डेमॉर्ट, डार्थ वेडर, ऐसे कुछ डार्क कैरेक्टर्स हैं। उसी हिसाब से लगता है कि टीएमसी और कांग्रेस के लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि टीएमसी और कांग्रेस के लोगों ने पार्लियामेंट, जनता की आवाज देश की संसद में ना उठ पाए, जनता के मन की आवाज और जनता के फायदे की बातें ना हो पाए, इसीलिए ये लोग डिसरप्ट कर रहे हैं। आपको ये जो टाइमलाइन है इसको सही मायने में समझना होगा, क्योंकि इस टाइमलाइन को ही सामने रखते हुए इनकी स्पष्ट रूप से हरकतें सामने आएंगी। आज की जो हरकत है वो आप सबको पता होनी चाहिए कि संसद में जब मंत्री अपना बयान पढ़ रहे थे तो उस कागज को उनके हाथ से छीनकर फाड़ा गया एक टीएमसी के नेता के द्वारा, और उससे पूर्व में जब प्रधानमंत्री नए मंत्रियों का इंट्रोडक्शन संसद में देने को खड़े हुए तो शोर मचाकर उस इंट्रोडक्शन तक को नहीं दिया गया, जहां पे बहुत सारे SC/ST वर्ग के लोग, OBC वर्ग के लोग, असलियत में जो दलित पीड़ित, जिनको भारत के समाज ने न्याय देने में देर की, उन लोगों को उस उच्च स्थान तक पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। भारत की संसद में सबसे अधिक महिला मंत्री बनकर आई और उनका भी इंट्रोडक्शन नहीं होने दिया। तो ये सब जो नैरेटिव है, भारत के पक्ष में नैरेटिव ना बन पाए बल्कि भारत के खिलाफ नैरेटिव खड़ा हो, इस झूठ मूठ की राजनीति को विपक्ष के लोग बढ़ावा दे रहे हैं और भारत के मान सम्मान को गिराने का काम कर रहे हैं। साथ ही भारत के अंदर जो भारत के लोगों के संबंधित डाटा है और उससे रिलेटेड कानून जो है वो ना बन पाए, क्रेडिबिलिटी सरकार की गिरे लोगों की नजर में, उसी को लेकर ये षड्यंत्र किया जा रहा है। इस षड्यंत्र से सिर्फ बचने की जरूरत नहीं है बल्कि आगाह होकर काम करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।
इससे जुड़े कोई प्रश्न हो तो आप साझा रमन थे। मैम एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन है, मतलब आप लोग जो ये कह रही कि ये कार्मिक लिस्ट है, तो ये एमनेस्टी इंटरनेशनल के अपने बयान से पीछे हटने से की वजह से, या फिर आप लोगों के पास एविडेंस बेस्ड? हमारे देखिए, एविडेंस हमारे पास कैसे होगा? आप एक लिस्ट बना के ले आइए तो एविडेंस आपने देना है, मैंने नहीं देना। ओनस उस व्यक्ति के ऊपर है जिसने ये लिस्ट बनाई। तो जो फॉरबिडन स्टोरी है, ये फॉरबिडन स्टोरी के ऊपर ओनस है कि वो लिस्ट सही है, उसको वो प्रूव करे, मेरे ऊपर नहीं है। पहली चीज कानूनी रूप से, और कानूनी रूप से एमनेस्टी के बयान से ये साबित होता है कि ये क्राफ्टेड लिस्ट है, ये झूठ मूठ की बनाई हुई लिस्ट है। तो झूठ मूठ की लिस्ट जिन लोगों ने बनाई है, उसके आधार पर जब आपका जो फाउंडेशन है, आधार है, वो एमनेस्टी का बयान है, आपका आधार फॉरबिडन स्टोरी है, वही अपनी लिस्ट प्रूव नहीं कर पा रहे, तो ये फैब्रिकेशन और ये कॉन्कॉक्शन के लिए आप जिम्मेवार है। फोर्जरी का केस तो आप पे बनता है, और पेगासस की जो बनाने वाली कंपनी है, वो एनएसओ आपके ऊपर डेफेमेशन का केस भी कर सकती है। हिमांशु रिपब्लिक। मैम सीधा सी बात ये है, जैसा कि आपने कहा कि ये सब कुछ फैब्रिकेटेड है, और जैसा कि आपने कहा कि इनके ऊपर केस भी किया जा सकता है, तो भारत सरकार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की इसमें छवि धूमिल हो रही है, भारत सरकार की छवि को खराब किया जा रहा है, तो क्यों नहीं भारत सरकार की तरफ से कोई जांच हो जाए या कोई एफआईआर दर्ज हो, कुछ एक्शन? मुझे देखिए, इस तरीके की चीजों में एनर्जी वेस्ट, मेरे हिसाब से ये वेस्ट ऑफ एनर्जी है। भारत सरकार को भारत के लोगों के पक्ष में जो कानून लाना है और भारत के लोगों के पक्ष में जो जो काम करना है, वो भारत की सरकार करेगी। एक झूठे नैरेटिव के ऊपर मैं अपनी सारी ताकत व्यस्त करूं और जो काम करने वाले हैं वो काम ना करूं, तो ये वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज है। बाकी जैसी जरूरत होगी उस समय अनुसार वो किया जाएगा। विकास चंद्रा, एक मिनट। मेरा सवाल है कि बार बार